Dear students, welcome to this online mathematics class. Exercise 5th में example number 19. By using mathematical induction method, prove that d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1 for all positive integer, means for n belongs to n. तो सबसे पहले let consider a statement p of n is to a. For n is equal to 1, d by dx x raised to 1 which is equal to 1, ये LHS, and RHS is equal to 1 into x raised to 1 minus 1, 1 into x raised to 0 which is 1. It means LHS is equal to RHS. सेम हो गई दोस्तों वैल्यू, इसे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे राइट हैंड साइड. इट मींस p of 1 is true. For n is equal to k, statement p of k is 2, d by dx x raised to k is equal to k into x raised to k minus 1. Consider it is true. ये हमें याद रखना है. For x n is equal to k plus 1, we have to prove d by dx x raised to k plus 1 is equal to k plus 1 into x raised to k plus 1 minus 1 is true. हमें इसे प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड. फॉर दैट मतलब ये d by dx x raised to k plus 1. दोस्तों d by dx x raised to k into x raised to 1, तो यहां पर एप्लीकेबल होगा मल्टीप्लिकेशन रूल. d by dx x raised to k into x raised to 1 as it is plus x raised to k as it is d by dx x raised to 1. According to the number 1 result, d by dx x raised to k का मतलब क्या होगा? k into x raised to k minus 1 into x रहेगा. x raised to k into x raised to 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही है, ये होगा 1. Therefore k into x raised to k plus x raised to k, x raised to k common, and here we have the remaining value k plus 1. Arrange it properly. k plus 1 into x raised to k के बदले हम plus 1 कर सकते हैं और minus 1 कर सकते हैं. क्लियर दोस्तों? तो k बैलेंस होगा और ये जो रिजल्ट है वो है हमारा RHS जो हमें प्रूव करना है. It means p of k plus 1 is true. If p of k is true, then we have to prove p of k plus 1 is also true. It means by mathematical induction method, principle of mathematical induction, for all n belongs to n, p of n is true. हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं. समझ गए दोस्तों? इसे लेना है और प्रोडक्ट रूल यूज करके राइट हैंड साइड में लाना है. एकदम इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 20 दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 20 है, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग द फैक्ट ऑफ साइन a plus b is equal to sin a cos b plus cos a into sin b, and the differentiation obtain the sum of formula for cosine। कोसाइन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, हम जानते हैं लेकिन हमें ये बतानी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट अबाउट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो बाहर की फंक्शन है साइन, जिसका डिफरेंशिएशन होगा cos a plus b into d by dx ऑफ इनर फंक्शन a plus b होगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल sin a कांस्टेंट d by dx of cos b, again cos b कांस्टेंट d by dx of sin a। Similarly cos a कांस्टेंट d by dx sin b, now sin b कांस्टेंट derivative of first term d by dx of cos a। Here cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx। यहां पर sin a as it is, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin b, और b का चेन रूल dB by dx। cos b कांस्टेंट, sin का होगा cos a into dA by dx रहेगा। cos a कांस्टेंट, sin का होगा cos b into dB by dx प्लस sin b कांस्टेंट रहेगा और cos a का होगा माइनस sin a, एंड इनर मोस्ट फंक्शन a का होगा dA by dx। दोस्तों ये जो दो टर्म्स है उनमें से हम dA by dx को कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, dA by dx कॉमन, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग विल बी cos a cos b minus sin a sin b, sin a sin b cos a cos b। फिर अच्छा ऐसा जब लेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी, हाँ ले सकते हैं ना। और इन दोनों टर्म में से हमें dB by dx कॉमन लेनी है, dB by dx, रिमेनिंग इज माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b। दोनों में कॉमन क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों में कॉमन। रिमेनिंग टर्म विल बी dA by dx प्लस dB by dx। लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है? cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx, and it is cancelled from both the sides. So finally we will get cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a into sin b। क्या आपको दिखाई देता है दोस्तों? ये कैसा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं किया, किया ना, डिफरेंशिएशन किया। किस तरह से किया? तो पहला टर्म कांस्टेंट, बाहर का फंक्शन, फिर अंदर का। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में बाहर का कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेते समय आपको ध्यान रखना है कि cos बाहर का फंक्शन कहलाता है, इसका डेरिवेटिव, फिर इधर जो फंक्शन है उसे वो अलग
क्लियर दोस्तों एकदम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपको प्रूव नहीं करना है, लेकिन हालांकि यहाँ पर है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला के तौर पर याद रखना है। किस तरह से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 22 जो है, इफ y is equal to modulus determinant fx gx h of x l m n a b c, prove that dy by dx is equal to something। अब दोस्तों dy by dx लेने से पहले हमें ये जानना होगा कि पूरे चैप्टर में क्या ऐसा टर्म हमने कभी देखा है? नहीं देखा। तो सोचिए क्या करना होगा। तो जो हमने देखे हैं उनके साथ में इसे कंपेयर करना है। तो डिटरमिनेंट को पहले हमें एक्सपांड करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले fx इनटू mc माइनस bn माइनस g ऑफ x इनटू lc माइनस an प्लस h ऑफ x इनटू lb माइनस am। ठीक है दोस्तों, चलो यहां तक सबको दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है सबको दिख रहा है, ओके। अब हम लेते हैं dy by dx। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट जो टर्म है मतलब कोएफिशिएंट जो वेरिएबल का होगा वो एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का होगा और वो कहलाएगा f डैश x mc माइनस bn g डैश x इनटू lc माइनस an h डैश x इनटू lb माइनस am। अब हमें इसे ही सुलझाना है, तो ध्यान से देखिए, f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c that's true है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है, ये तो आंसर तो प्रूव हो गया, लेकिन हर वक्त हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जब ऐसे डिटरमिनेंट का हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले एक कॉलम या एक रो को पकड़ लीजिए आप। तो पहली यहां पर रो है, उन सभी टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है। सेकंड जो दो है उनका डिफरेंशिएशन नहीं लेना है, एज इट इज रखना है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी तरह आप समझिएगा जरूर। देखिए दोस्तों, यदि y इज इक्वल टू x x स्क्वायर x क्यूब 1 x 3 x x स्क्वायर एंड 4 है। हमें ये कहा गया है कि फाइंड f डैश x और dy by dx। तो ध्यान दीजिए, dy by dx इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 22 हमें क्या करना है, सबसे पहली जो रो है हमें उससे आप उसका लेना डिफरेंशिएशन। तो x का होगा 1, फिर 2x, फिर 3x। रिमेनिंग जो रोज है उनको एज इट इज रखना है। यहां पर क्या था, बाकी सब वेरिएबल थे, लेकिन यहां पर क्या लिया, सॉरी यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, लेकिन यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स है, दोनों रो में। तो अब हमें पहली रो एज इट इज लेनी है, x x स्क्वायर x क्यूब। थर्ड रो हमें एज इट इज लेनी है, और जो सेकंड रो है उसका लेना है डेरिवेटिव 0 1 0। समझ गए? अब प्लस करके फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, लेकिन डिफरेंशिएशन है थर्ड रो का, तो 1 x स्क्वायर का रहेगा 2x एंड 4 का। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? यदि हम
अब इसे हम स्प्लिट करेंगे तो वो होगा डिवाइड बाय डीएक्स। लेकिन यदि हम इसमें करने जाए तो देखिए यहाँ पर 0 0 0 आएगा और थर्ड रो में 0 0 0 कोई कांस्टेंट है, तो जिस डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वैसे ही दोनों निकल जाए तो एक ही रह जाता है। तो सिर्फ एक ही रंग जब वेरिएबल होते हैं ऐसा लिखना है कि सभी रोज में वेरिएबल होते हैं तो डिवाइड बाय डीएक्स हमें किस मेथड से लेना है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, लेकिन कंप्लीट तभी कहा जाएगा जब आप कॉन्फिडेंट लेवल से अच्छे हो, बेटर हो। 50 मार्क्स की टेस्ट के लिए आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो और आप 45 अप मार्क्स लाने की काबिलियत रखते हो, तभी हम कह सकते हैं कि चैप्टर पूरा हो गया, नहीं तो अधूरा ही है। क्लियर?